हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम अपना चैप्टर कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इन द प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। अभी आज हम वही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, the fundamental unit of life बच्चों, that is this chapter is all about the cells. This chapter is all about your cells. Here you can see the diagram of a animal cell. This is the structure of a animal cell बच्चों। तो जो आपका टॉपिक चल रहा है that is हम बात कर रहे हैं about the cellular organels. We talked about various types of cell organels बच्चों। हमने बात की थी that these cells are responsible for the formation of all the living things on the earth and the cells। एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है। that cells combine to form the tissues combines to form your organs or organs combines to form a whole organ system. It forms a whole organ system बच्चों, and finally a organism is made. Now there are two types of organism. यहाँ से आपके organisms बनते हैं। अब ये जो organisms हैं वो भी दो टाइप के थे। कौन कौन से थे? The organisms were of two types, unicellular and multicellular. Unicellular and multicellular. ओके बच्चों, मल्टी सेल्यूलर में है आपके प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, ओके, एंड हियर यू हैव बैक्टीरिया, आर्की, ओके। नेक्स्ट हमने बात की थी आपके प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की। देयर वर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स. Prokaryotic cells were the unicellular ones, while these are the multicellular ones. अब यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, यूकैरियोटिक सेल भी फर्दर टू टाइप्स के थे, द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. Now here you can see the structure of an animal cell. ओके, एंड यहाँ पर हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज अ डबल मेम्ब्रेन विच इज सेमी फ्लूइड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. देन यू हैव इनसाइड द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म है बच्चों, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट that is inside the plasma membrane into which there is nucleus. Okay, now there are cell organelles like mitochondria, which is called as the powerhouse of the cell. Why it is called as the powerhouse of the cell? Because it is responsible for the synthesis of ATP. It is responsible for the synthesis of ATP, which is the energy currency of the cell. Which is the energy currency of the cell. Okay. Now राइबोसोम्स. राइबोसोम्स बच्चों, राइबोसोम्स फर्स्ट हमने बात की आपके न्यूक्लियस की. ओके, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स बच्चों, राइबोसोम्स क्या है? स्मॉल स्ट्रक्चर्स है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. देन यू हैव उसके बाद बच्चों लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स भी हमने डिस्कस किया था इन योर प्रीवियस लेक्चर. लाइसोसोम्स. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूक्लियस. इनसाइड द न्यूक्लियस इज योर न्यूक्लियोलस. क्या होता है न्यूक्लियोलस? इट इज स्कैटर्ड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म बच्चों. न्यूक्लियोप्लाज्म इज बेसिकली दिस पार्ट. इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज nucleoplasm, and nucleus is just located and it is not having any membrane around it. There is a nuclear envelope जो कि double membrane structure होता है. The outer membrane is having
The outer membrane is basically continuous with the endoplasmic reticulum, while the inner membrane is in association with the nucleoplasm. There is smooth endoplasmic reticulum and there is rough endoplasmic reticulum. Here they have not shown the rough endoplasmic. Yes, here they have shown the rough endoplasmic reticulum. So rough endoplasmic reticulum have these ribosomes present on their surface, and the smooth endoplasmic reticulum don't have any ribosomes attached to their surface. Next you have these structure. Golgi apparatus की बात की थी हमने. Golgi apparatus और Golgi bodies भी बोलते हैं इनको. Golgi apparatus, इनका क्या फंक्शन था? बेसिकली दीज आर पोस्टमैन. ओके, जैसे पोस्टमैन जो है वो लेटर्स देता है टू द टारगेट हाउसेस, ठीक है, डेस्टिनेशंस. वैसे ही गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो क्या करता है, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे बाय द राइबोसोम और बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको वो स्टोर करता है, पैकेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है टू देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस. ओके, नेक्स्ट यू हैव सेंट्रियोल्स, पेरोक्सिसोम्स एंड माइक्रोविलाई. ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम एज वेल इन टुडेज क्लास. नेक्स्ट बच्चों, प्लांट सेल की बात करें अगर हम, दिस इज योर प्लांट सेल and you have to discuss our next organelle which is present only in the case of plant cell. अब हम जिस सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे that is only present in your plant cell. वो किसमें प्रेजेंट है बच्चों? बेसिकली वो प्रेजेंट है आपके प्लांट सेल के अंदर सिर्फ. ओके, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द केस ऑफ प्लांट सेल. ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ एनिमल सेल. सो व्हाट इज दैट थिंग बच्चों? सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. ओके, which are present in the green plants. There are amyloplast. Okay, we are going to talk about them as well. Golgi apparatus we have talked. These we have already covered. The cytoskeleton I already told you, movement of cell में involved होती है, support of cell में involved होती है बच्चों. ठीक है, इसमें कुछ फिलामेंट्स आ जाते हैं आपके. ओके, पेरोक्सिसोम्स हमें डिस्कस करना है. पेरोक्सिसोम्स बेसिकली क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं. वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डीपली डिस्कस अबाउट देम. तो आज हम बात करेंगे आपके क्लोरोप्लास्ट के बारे में. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. ओके, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम लोग. सो प्लांट सेल में बच्चों क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. देयर आर बेसिकली प्लास्टिड्स विच आर प्रेजेंट इन, ठीक है, प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनल्स. क्लोरोप्लास्ट को ही बोलते हैं बेसिकली. दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. अब ये दो टाइप की होती हैं बच्चों, ये होती हैं दो टाइप की. एक होती है आपकी क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक होती है आपकी ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. वन इज द क्रोमोप्लास्ट बच्चों एंड द अदर वन इज द ल्यूकोप्लास्ट. ओके, नाउ दिस इज द क्रोमो मीन्स कलर्ड, तो ये कलर्ड प्लास्टिड्स होती हैं. दीज आर कलर्ड plastids. These are colored plastids, while the leucoplast बच्चों these are colorless. These are colorless plastids. Okay, these are colored plastid while these are colorless plastid. Okay, chromoplast में बच्चों we see the example of chlorophyll. So ऐसे plastids जिनके पास plastids having chlorophyll pigment, chlorophyll pigment are called as chloroplast, are called as chloroplast. उनको बोलते हैं chloroplast. So chloroplast are the cell organelles that have chlorophyll pigment present in them. Okay, chlorophyll pigment present in them. Now this chlorophyll pigment is involved in the absorption of sunlight.
okay, and involved in the process of photosynthesis. You all know that plants make their own food by the process of photosynthesis, and in the process of photosynthesis, what is required? CO2, water, and sunlight. Now this sunlight in plants is absorbed by this chlorophyll pigment which is present in the cell organelle called as क्लोरोप्लास्ट. बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है ये, ठीक है. किस में प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है. वेट, okay. If you see the structure of a chloroplast, बच्चों क्लोरोप्लास्ट जो है उसके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट है called as chlorophyll pigment, and this pigment is involved in the absorption of the sunlight which helps in the process of photosynthesis by which the plant make their own food. अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें बच्चों, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका. डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती है बच्चों, which has outer membrane and it has inner membrane. Okay, now this cytoplasm which is present here inside is called as stroma. It is called as stroma. नाउ बच्चों इनके बीच में जो स्पेस है बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. नाउ यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आपके इनसाइड जिनको आप बोलते हैं ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज अ थाइलाकॉइड. This is a thylakoid basically. This is a thylakoid and इस पूरे की बात करें तो that is called as granum. क्या बोलते हैं बच्चों इनको? ग्रैनम बोलते हैं. ओके, एंड दीज आर कनेक्टेड टू वन अनदर लाइक दिस बाय अ लैमेली. ओके, सो वी आर सेइंग और भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर्स. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जिसका अंदर वाला पार्ट स्ट्रोमा होता है. टू मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन हैज द स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, and these coin-like structures are thylakoid, which together forms a granum, and these are connected to each other by stromal lamellae. Stromal lamellae बच्चों. So ये था आपका क्लोरोप्लास्ट के बारे में. Okay, this is all about chloroplast. So there are numerous membrane layers embedded, which is called as stroma, and यहाँ पर chloroplast is kind of similar. Okay, it is similar. क्लोरोप्लास्ट जो है वो कुछ सिमिलैरिटी शो करता है विद द mitochondria. Okay, kind of it is similar to
क्यों बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या था जो क्लोरोप्लास्ट के पास भी है? क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स ओन डीएनए एंड इट कैन सिंथेसाइज सम ऑफ इट्स प्रोटीन्स. कैन सिंथेसाइज सम ऑफ इट्स प्रोटीन्स. बच्चों इसके पास भी खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं. डीएनए होता है और इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं. क्या होते हैं? डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं इसके पास. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट बच्चों. अब हम आगे आपके यहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनल्स खत्म होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट discuss all the cell organelles all together. तो अभी तक जो भी डिस्कस किए हमने सेल ऑर्गेनल्स, जल्दी से फटाफट से हम देखेंगे सबके फंक्शंस. ओके. सो ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चों. सबसे पहले आपका सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को सेल मेम्ब्रेन. ओके. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है बच्चों? सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है. ठीक है. प्रोटेक्ट करती है इनर ऑर्गेनल्स को. एक्ट करती है एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये क्या कर रही है? शेप प्रोवाइड कर रही है. इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. दैट इज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स and it is acting as a barrier. It is acting as a barrier between the extracellular and cytoplasm. Now centrosomes. Centrosomes बच्चों एनिमल सेल्स में होते हैं और इनका रोल होता है सेल डिवीजन में. सेल डिवीजन में. व्हाट इज सेल डिवीजन? वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, सेल डिवीजन ओनली. देन योर क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. इसके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स. क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल विच इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया. इट हैज इट्स ओन डीएनए and ribosomes. Also it plays a role in photosynthesis. How? Photosynthesis बच्चों, photosynthesis में क्या बताया मैंने आप लोगों को? That chlorophyll is required and chlorophyll is present inside the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म. अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. यहाँ पर सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड देयर आर अदर सेलुलर एक्टिविटीज विच गोज ऑन इन द साइटोप्लाज्म. नाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum बच्चों, we have already discussed that endoplasmic reticulum is of two types. The RER, which is a rough endoplasmic reticulum. It's a rough endoplasmic reticulum, and the other one is your smooth endoplasmic reticulum. The rough endoplasmic reticulum we have discussed is involved in the synthesis of proteins. Synthesis of proteins and their modification and modifications of proteins which are synthesized by the ribosomes. Smooth endoplasmic reticulum is responsible for the manufacturing of the lipids and carbohydrates. इनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑल्सो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों. डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट इज योर गोल्जी अपरेटस. गोल्जी अपरेटस जो है बच्चों बेसिकली ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. ट्रांसपोर्ट करता है जो भी प्रोटीन्स बने हैं, ठीक है, उनको उनके टारगेट डेस्टिनेशन पे भेजने का. नाउ कम्स द लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स बच्चों, लाइसोसोम्स जो है वो डाइजेशन करते हैं, रिमूवल करते हैं वेस्ट मटेरियल का, और जो भी डैमेज्ड सेल्स हैं उनको क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं. एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स. सुसाइडल बैग्स क्यों बोल रहे हैं लाइसोसोम्स को? लाइसोसोम्स are suicidal bags as they are involved in the digestion of worn out cell organelles as well as the cell if it is damaged. Then comes your mitochondria. Mitochondria में क्या है बच्चों? Mitochondria में basically क्या होता है? It is a site of cellular respiration. Cellular respiration अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं cellular respiration क्या होता है बच्चों. ठीक है. जब भी आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, बॉडी के अंदर जाती हैं, सपोज ये आपका टिश्यू है,
टिश्यू के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपका फूड है, आप कुछ भी खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और उसका ब्रेक डाउन होकर आपको मिल जाती है एटीपी, दैट इज कॉल्ड एज, और यहाँ पर रिलीज हो जाता है CO2, दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है with the help of cellular respiration. This oxygen is utilized to break down this glucose to give energy in the form of ATP. एंड बच्चों यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, जो हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सहेल कर देती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ द सेल, हाउ, बिकॉज इट इज हैविंग द DNA which is deoxyribonucleic acid. Now your DNA is having all the information that is carried into the offspring by the parents and it controls the hereditary characters. Okay, next enzyme, next cell organelle बच्चों, it is peroxisomes. peroxisomes कहाँ देखे आप लोगों ने, सेल के अंदर, यहाँ पर I think we have this structure. Okay, these are the peroxisomes which are present here in the plant cell and here in the animal cell. Now peroxisomes का function होता है in the metabolism बच्चों, in the metabolism. So basically these are going to be involved in metabolism of lipids, metabolism of lipids. Okay, बेसिकली जो भी रिएक्शंस आपके सेल के अंदर हो रही हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, जब भी हम कुछ फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, बेसिकली यूटिलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है। ओके, नाउ कमिंग टू प्लास्टिड। प्लास्टिड्स क्या है बच्चों, यहाँ पर टू टाइप्स के थे, क्लोरोप्लास्ट था और आपका ल्यूकोप्लास्ट हमने देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट था, इट इज हैविंग क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड यहाँ पर इम्पार्ट करेगा डिफरेंट कलर, बिकॉज क्लोरोफिल पिगमेंट गिव्स ग्रीन कलर पिगमेंट होती है बच्चों। एंड देयर इज अ ल्यूकोप्लास्ट दैट स्टोर्स स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट। ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता है बिकॉज इट इज अ कलरलेस पिगमेंट, ओके, एंड इट स्टोर्स स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट। नाउ कमिंग टू राइबोसोम्स, इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो आपके राइबोसोम्स होते हैं बच्चों, राइबोसोम्स बेसिकली दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन, these are the site of protein synthesis, these are the site of protein synthesis. Now coming to the vacuoles, vacuoles की अगर बात करें, these are going to provide the shape and rigidity to the cell and the digestion, excretion and storage of substance. जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और बच्चों ये हेल्प करता है इन प्रोवाइडिंग द शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स, ओके। तो यहाँ पर हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं खत्म। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज द सेल Okay, now we are going to discuss cell division. तो बच्चों सेल थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा था that cells arise from pre-existing cells. जैसे कि ये एक सेल है तो it will give rise to two new cells. Now it will again give rise to two new cells. Similarly here also it will give rise to two new cells. So this thing that you are seeing here, क्या है बच्चों, ये क्या है? It is basically द सेल डिवीजन, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। अब ये दो टाइप की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। दो टाइप की होती है बच्चों ये, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में बच्चों क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर आपका सेल डिवीजन होगा in the somatic cells.
जितने भी आपके बॉडी सेल्स हैं एक्सेप्ट फॉर द जर्म सेल्स आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स. ऑल द सेल्स इन योर बॉडी आर गोइंग टू डिवाइड बाय द माइटोसिस एक्सेप्ट फॉर द जर्म सेल्स. जर्म सेल्स क्या है बच्चों? जर्म सेल्स आपके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहां पर जो सेल्स हैं वो जर्म सेल्स होते हैं. ठीक है, जर्म सेल्स आर गोइंग टू डिवाइड बाय मेयोसिस. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेसिकली these are specific cells of the reproductive organs. Reproductive organs in animals and plants that divides to form gametes which further fertilize to give the offspring. ओके तो यहाँ पर माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होती है. ठीक है, ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल एक्सेप्ट फॉर द जर्म सेल्स विच आर द सेल्स ऑफ योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. बच्चों तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यहाँ पर ये डिवाइड होता है इनटू द डॉटर सेल एंड ये जो डॉटर सेल है यहाँ पर 2 डॉटर सेल बनती है बच्चों. ठीक है, यहाँ पर ये क्रोमैटिन जो है पहले कंडेंस होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स एंड फर्दर इट गेट्स divided into 2 equal halves into the 2 daughter cells. इसको बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे that mitosis में फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे the process of cell division by which most of the cells in the body divides. जैसे कि सोमैटिक सेल्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम? सोमैटिक सेल्स बोलते हैं बच्चों. नेक्स्ट है आपका दैट ईच सेल इज कॉल्ड एज मदर सेल. ओके, मदर सेल होता है बच्चों, मदर सेल विच डिवाइड्स इनटू 2 identical daughter cells which divides to form 2 identical daughter cells. Now यहाँ पर बच्चों इनमें जो अगर क्रोमोसोम इज 2C तो यहाँ भी कितना रहेगा? इट विल रिमेन इक्वल. ओके, इट विल रिमेन, ऐसे नहीं समझाते हैं. बेसिकली यहाँ पर जो आपका DNA है या फिर क्रोमोसोम्स हैं ओके वो सेम रहेंगे, हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सपोज यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है तो ये डिवाइड हो जाएंगे 1 क्रोमोसोम. दैट इज both the daughter cells have same number of chromosomes. नेक्स्ट है बच्चों, ये हेल्प करता है बेसिकली जो आपकी सेल डिवीजन है, इट इज गोइंग टू helps in repair of the tissues बच्चों. फिर उसके बाद में आपको हेल्प करता है इन द ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करती है आपको सेल डिवीजन. ओके बच्चों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये माइटोसिस की बात है. जैसे कि ये दिस इज द माइटोसिस. नाउ कमिंग टू द मेयोसिस. तो यहाँ क्या होता है, स्पेसिफिक आपके सेल्स होते हैं. तो यहाँ पर बच्चों स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज आर गोइंग टू
divide in animals and plants divides called as germ cells divide by meiosis. Divide by meiosis. Now they give rise to offspring. ओके यहाँ पर बच्चों दो कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स दिखेंगी, पीछे जैसे देखा था हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स हो रही थी, पहले यहाँ पर हुई यहाँ पर हुई, तो ये फर्स्ट डिवीजन और ये सेकेंड डिवीजन बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन ऐसी होगी, ठीक है, ये फर्स्ट। नाउ these daughter cells are further going to divide into 4 daughter cells, तो ये सेकेंड डिवीजन होगी। तो हुआ ना बच्चों यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स हुई ना। नाउ it is going to produce 4 cells, तो यहाँ पर क्या होता है 4 cells बनते हैं। Four cells are produced instead of 2. 4 cells are produced instead of 2, जबकि यहाँ पर क्या होता है 2 cells are produced instead of 2 cells are produced only। हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर 2 cells are produced। यहाँ पर सिर्फ 2 cells प्रोड्यूस होते हैं बच्चों। तो ये हमने बात की आपके सेल डिवीजन की। लेट्स डिस्कस दिस दैट हमने यहाँ पे देखो दिस इज द पेरेंट सेल। नाउ पेरेंट सेल में ये क्रोमैटिन होगा, वो जो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स बनाएगा एंड बच्चों वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। ऑल्सो क्रोमोसोम का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। Okay, these are basically chromatids. These are chromatids बच्चों। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है क्रोमैटिड क्या है, क्रोमैटिन क्या है। बेसिकली अगर ये आपका सेल है, इट इज अ सेल, ओके, इसके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ओके। अब इसके अंदर हम सपोज न्यूक्लियस बना लें, suppose this is your nucleus and inside the nucleus there is this thread like structure. This thread like structure is chromatin। ओके बच्चों, क्या होता है ये chromatin। Now this chromatin is made by डीएनए प्लस प्रोटीन। किसकी बनती है बच्चों ये, डीएनए और प्रोटीन की, ओके। नाउ डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, जो ये प्रोटीन है ना वो पॉजिटिव चार्ज होती है, इसीलिए इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है, क्रोमैटिन, ओके। नाउ दिस क्रोमैटिन कैन कंडेंस, जो आपका डीएनए होता है वो 2 मीटर लॉन्ग होता है, जो इस इतने छोटे से न्यूक्लियस में टाइटली पैक्ड होता है, कंडेंसेस, दैट इज इट गेट्स टाइटली पैक्ड बच्चों, टाइटली पैकेजिंग हो जाती है उसकी, टाइटली पैक्ड टू फॉर्म द, क्या बनाने के लिए, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं बच्चों, दे लुक लाइक दिस,
Okay, this is the chromosomes. Now chromosomes has these small segments present on it. जैसे कि सपोज ये सेगमेंट की अगर हम बात करें, this segment of a chromosome is called as gene. This segment of DNA is called as gene. अब जीन क्या होती है बच्चों? अगर मैं आपको बताऊं जीन के बारे में, पार्ट होती है ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन. ये जो प्रोटीन है ना बच्चों, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं. दे प्ले डिफरेंट रोल्स इन द बॉडी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन प्रोटीन, ओके, केराटिन विच इज प्रेजेंट इन योर नेल्स, हेयर, स्किन. तो बच्चों वो एक प्रोटीन होगी. देर आर अदर प्रोटीन्स एज वेल. तो यहाँ पर जो डीएनए वो कोड करता है किसी प्रोटीन के लिए, एंड दीज प्रोटीन्स आर गोइंग टू कोड फॉर कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स. ये ट्रेट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, आप हेयर कलर ले सकते हैं जो आपके पेरेंट्स जैसा है, या फिर आपकी जो हाइट है वो पेरेंट्स पे गई है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. और द आई कलर दैट यू सी, ओके, आई कलर. ओके बच्चों, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा होता है फिनिश, है ना बच्चों. ये चैप्टर यहाँ पर हमारा हो जाता है फिनिश, ठीक है. सेल चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बच्चों यहाँ पर आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है. एक सेकेंड. ओके, तो हमने ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश किया है. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये चैप्टर. तो इस चैप्टर में हमने किस किस की बात कर ली बच्चों, एक बार लास्ट में रिकैप करते हैं. हमने सेल्स की बात की. सेल्स को क्या बोला था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और आपको समझ में आ गया होगा आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर चैप्टर कि why these are called as structural and functional, because these cells are combining to form a whole organism's body. Also, these individual cells are performing all the functions with the help of their cell organelles, okay, and their components, and leading to the whole functioning of the organism. That's why these cells are called as the fundamental unit, okay, fundamental unit. These are the simplest unit बच्चों, simplest unit है लाइफ की, ठीक है. these are the simplest unit and ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं. you can see them with the help of a microscope only, okay. जैसे कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था by observing a thin slice of a cork, okay, and he observed honeycomb like structure जिसमें उसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे थे and he named those compartment as cells. उसने नाम दिया था उनको सेल बच्चों. फिर उसके बाद सेल थ्योरी आई थी जिसमें आपके शिलियन एंड श्वान ने बताया था दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल्सो दी सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो उनकी भी जो थ्योरी थी बच्चों बिल्कुल सही थ्योरी है जो कि इस टाइम पर बिलीव किया जाता है. ओके, रुडोल्फ वर्च्यू बेसिकली वाज द साइंटिस्ट टू से दिस दैट द सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नाउ कमिंग टू द सेल्स जो है बच्चों उनके डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनका क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या फंक्शन है उस बेसिस पर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ले लीजिए, देयर आर न्यूरॉन्स विच हैव अ डिफरेंट शेप एंड फंक्शन, ओके. मसल सेल्स जो है उनका डिफरेंट शेप एंड फंक्शन है. हार्ट सेल्स जो है उनका डिफरेंट है. RBCs, WBC, they all have a different shape and size depending on what their function is. Now we studied about prokaryotic and eukaryotic, जिसमें से prokaryotic primitive cells थे that came first,
और अर्ली ऑन द अर्थ, एंड वो थोड़े सिंपल थे बिकॉज दे डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. Okay, these are present in bacteria. Finally, eukaryotic cells were evolved, and these eukaryotic cells have the complex structures because they have many cell organelles. बच्चों, they have many cell organelles जो कि हमने already cover कर लिया in this chapter. उसके बाद हमने बात की कि there are different types of transportation system across the plasma membrane like active transport, passive transport. तो हमने वो भी कवर किया. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है मॉलिक्यूल्स को जाने के लिए एनर्जी लगेगी क्योंकि वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. वाइल इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट बच्चों, वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी बिकॉज वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है. एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट लिया हमने, ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट लिया जिसमें हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. आइसोटोनिक क्या था? वेयर द water outside and inside the cell is equal, that's why we say the cell is flaccid. While in the case of hypertonic mein the water inside the cell is more, that's why the water is moving out and the cell is becoming plasmolysed. While in the case of your hypotonic solution, hypotonic में क्या हो रहा था बच्चों? hypotonic में basically there was movement inside the cell. Okay, water outside was more, so there was movement inside the cell and the cell was swelling up. Okay, swelling up and becoming swelled up. Okay, then उसके बाद में बच्चों हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात की, हमने सेल डिवीजन के बारे में बात की. Okay, by which these cell organelles are going to make proper functioning in the body. Okay, I hope this chapter was interesting for you also. Thank you बच्चों.